Hello students, I hope you all are fine, and today we are going to discuss the NCERT questions and few extra important questions of the chapter 4 materials, metals and non-metals, right? So this is our lecture number 5. I hope आप सबने जो पुराने 4 लेक्चर थे जिसमें मैंने ये चैप्टर को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ा है। तो आज हम लोग इसके जो NCERT क्वेश्चंस हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे सो दैट आपको ये चैप्टर है जो वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन योर बुक, it is a kind of MCQ. The question is, which of the following can be beaten into thin sheets? Which can be beaten into थिन शीट्स? सबसे पहले तो हमारे पास यह क्या आ गया, बीटन इनटू थिन शीट्स। नाउ रिमेंबर, जब हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, उसमें हमने ये पढ़ा था दैट द मेटल्स दे आर एबल टू चेंज देमसेल्व्स इनटू थिन वायर्स एंड थिन शीट्स, राइट? एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ चेंजिंग देम इनटू थिन वायर्स एंड थिन शीट्स इज नोन एज मैलिएबल एंड डक्टाइल। तो इसका मतलब सबसे पहले तो थिन शीट्स में क्या होंगे चेंज? हमारे पास जो क्लू है दैट इज इट इज अ मेटल बिकॉज कैन बी बीटन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड व्हेन इट इज बीटन कन्वर्टेड इनटू शीट्स, राइट? जो नॉन मेटल्स होते हैं व्हेन वी बीट देम दे कन्वर्ट इनटू पाउडर। सो द ऑप्शंस आर, ए इज जिंक, phosphorus, sulfur and oxygen। सबसे पहले अब इनमें से बताना है कि हम लोग किसको थिन शीट्स में बीट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, this can only be depicted if you are very much familiar that out of these which is a metal and which is a non-metal, which is a metal and which is a non-metal. Now phosphorus, sulfur and oxygen, it is a non-metal. So we are very much clear from this that these three are non-metals. They cannot be beaten into thin sheets. When they'll be beaten they will become like a powder. So zinc is a malleable substance which on beating can be broken down into thin sheets, right? Next question, which of the following statements is correct? All metals are ductile, all non-metals are ductile, generally metals are ductile, some non-metals are ductile. Now first of all, ductile means when the metals they can be beaten into thin wires. जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कॉपर की वायर हैं ये सारी हम लोग हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले तो नॉन मेटल्स की जितनी भी इसमें से ऑप्शन है वो हम लोग बाहर निकाल देंगे। बी पार्ट एंड डी पार्ट ये तो पहले ही बाहर हो गया क्योंकि नॉन मेटल्स दे कैन नॉट बी बीटन, दे आर नॉट डक्टाइल। सो वी आर लेफ्ट विद ए एंड सी पार्ट। सो ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। बच्चा, सारे मेटल्स डक्टाइल नहीं होते, ये नहीं ज़रूरी है कि जब उनको तोड़ें तो वो थिन वायर्स में ही अपने आप को कन्वर्ट करें। सो जनरली ऑल द मेटल्स आर डक्टाइल, जनरली, ऑलमोस्ट एवरी, राइट? सो इसका आंसर हमारे पास क्या है? जनरली ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन. You have to fill in the blank. Sorry, the question is, phosphorus is a very dash non-metal. First of all, phosphorus is a non-metal and it is a very very reactive non-metal. Remember, मैंने आपको बताया था that phosphorus it has to be stored in water when we were doing the chemical properties of non-metals. ठीक है? Then metals are good conductor of heat and electricity. याद आया? हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था दैट द मेटल्स दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड
electricity. Then third one is iron is dash reactive than copper. Obviously reactivity series में हम लोगों ने पढ़ा था जो आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस करती है. It means iron is more reactive than copper. And the D part is metals react with acids to produce which gas? Metals, they react with acids to produce hydrogen gas. So first one is reactive. Phosphor is a very reactive non-metal. Metals are good conductor of heat and electricity. Iron is more reactive than copper, and when metals they react with acids they produce hydrogen gas. Right? Next question. So the next part is you have to mark true and false. If it is for T you have to for true you have to write down T, and if it is false you have to write down F. ठीक है जी. सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट्स विद एसिड्स. जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट्स विद एसिड्स. याद करो इस क्वेश्चन का जो आंसर है. Do they generally do the non-metals they react with acids? No, it is false. We did in the chemical properties. Sodium is a very reactive metal. Yes, because it is placed on the reactivity series. सबसे ऊपर place करा हुआ है इसको. So it is true. T. Then copper displaces zinc from zinc sulfate solution. No, because कॉपर जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है. जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं करेगा. सो इट इज़ अ फॉल्स. देन द नेक्स्ट वन इज कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. नो, कोल कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स बिकॉज कोल जो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन ओनली, एंड कार्बन इज नॉट अ मेटल, इट इज़ अ नॉन मेटल. पढ़ा था ना हम लोगों ने जो कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं ग्रेफाइट एंड डायमंड, दे आर वेरी वेरी हार्ड. डायमंड इज वेरी हार्ड. इट पोजेसेस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बट दो इट इज प्लेस्ड इन द नॉन मेटल सीरीज. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल. यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है. सबसे पहले तो मेटल्स की अपीयरेंस. अपीयरेंस कैसी होती है मेटल्स की? मेटल्स they are lustrous, means they shine, and on the other hand जो non metals होते हैं they are dull, they do not shine. Then next is hardness. What about the hardness of metals? Metals they are hard and non-metals they are soft. पढ़ा था ना हम लोगों ने. Then third part malleability and ductility. Metals and non-metals इन दोनों में क्या फर्क है? Malleability है that possesses metals they are malleable and non-metals they are brittle, they are not. Remember, similarly for the case of ductility, metals they are ductile and non-metals they are not. Then heat conduction and electricity conduction. But chalo, you remember that we use metals like aluminium for the food, production of food. So metals they are the good conductors of heat and non-metals they are the bad. Similarly electricity का हम लोग जो wires घर में use करते हैं metals की होती हैं and non-metals they are not good conductors of electricity, they are the bad conductors of electricity. Clear हो गया इतना? I hope this is very very easy. You must have understood. So next part is, next question is you have to give reasons.
You have to give reasons. First question is aluminium foils are used to wrap food items. Obviously हम लोग जो घर में foil paper use करते हैं, it is made up of aluminium. Aluminium फूड को रैप करने के लिए यूज़ होता है. वाई, इसका रीज़न बताना है. द रीज़न बिहाइंड इट बिकॉज एल्यूमिनियम इज़ मेलिएबल. जब एल्यूमिनियम को हम लोग बीट करते हैं हैमर के साथ, तो एल्यूमिनियम इट हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्टिंग itself into thin sheets. That is why aluminium foils are used to wrap foods, because aluminium metal is malleable. और मेलिएबल है तो ये थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट. इसी कारण ये यूज होता है टू स्टोर, टू रैप फूड. नेक्स्ट वन इज इमर्शन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटालिक सब्सटेंसेस. आंसर इज इमर्शन रॉड्स जो होती हैं लिक्विड्स को हीट करने के लिए, जैसे हम लोग सर्दियों में पानी हीट करते हैं तो हम लोग रॉड डाल देते हैं. जिनके घर में गीजर नहीं होता, दे पुट अ रॉड टू हीट वाटर. So they are saying that these rods are made up of metallic substances. Yes, why they are made up of metallic substances? Because metals are good conductors of electricity. समझ आया? Metals क्या हैं? They are good conductors of electricity. Next one is copper cannot displace zinc from its salt solution because zinc is more reactive than copper. रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर जिंक के बाहर है, इसी कारण जो जिंक है वो कॉपर को डिस्प्लेस करता है. समझ आ गया? नेक्स्ट इज सोडियम एंड पोटाशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स. So first question was why aluminium is used to store food? Because aluminium has a property of malleability. When it is beaten with hammer, it can convert itself into thin sheets. Then जो इमर्शन रॉड्स होती हैं टू हीट लिक्विड, वाई दे आर मेड ऑफ मेटल? बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वाई कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक? बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड कॉपर इज पुट बिफोर जिंक. तो जिंक उसके बाद हमने प्लेस करा हुआ है रिएक्टिविटी सीरीज में, इसी कारण जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है. नेक्स्ट इज सोडियम एंड पोटाशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन बिकॉज दे आर वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल? जो नींबू का अचार होता है वो आप लोग एल्यूमिनियम यूटेंसिल में स्टोर करके रख सकते हो. अगर कर सकते हो तब भी एक्सप्लेन करो क्यों कर सकते हो. अगर नहीं कर सकते तब भी एक्सप्लेन करो दैट वाई यू कैन नॉट. सो द आंसर इज पिकल कंसिस्ट ऑफ एसिड्स. ऑब्वियसली जो हम लोग अचार खाते हैं उसमें एसिड होता है, ठीक है, विच रिएक्ट विद एल्यूमिनियम मेटल टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन. नाउ व्हाट हैपन्स, जो पिकल जो अचार होता है उसमें एसिड होता है, वो जब एल्यूमिनियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो जब आपस में रिएक्ट करते हैं सो हाइड्रोजन एंड सॉल्ट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. सो पिकल को हम लोग एल्यूमिनियम यूटेंसिल में यूज़ नहीं करते क्योंकि जब ये इन दोनों चीज़ों से रिएक्ट करेगा ऑब्वियसली द फूड विच इज़ बीइंग स्टोर्ड इन द एल्यूमिनियम मेटल इट इज़ गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर कंजम्पशन. बिकॉज when pickle being acidic reacts with aluminium metal, it produces salt and hydrogen. So on consumption of this pickle it will be not good for health, so that is why we avoid it. Now you have to match. A part को
बी पार्ट में से जो ऑप्शंस हैं उसमें मैच करना है. सबसे पहले गोल्ड. गोल्ड के सामने जो ऑप्शंस हैं दैट इज थर्मामीटर्स, इलेक्ट्रिक वायर, रैपिंग फूड, ज्वेलरी, मशीनरी एंड फ्यूल. वेरी इजी. गोल्ड is meant for making jewelry, so we'll be using gold for jewelry. Means first one is going to match itself with the D part, right? Now the second one is iron. ये भी बहुत इजी है. आयरन के सामने अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं दैट इज थर्मामीटर्स, इलेक्ट्रिक वायर, रैपिंग फूड, मशीनरी एंड फ्यूल. इट इज मशीनरी. हम लोग यूज़ करते हैं आयरन को बहुत ही एक्सेसिवली. मीन्स द सेकेंड वन इज मैचिंग विद द ई पार्ट. नाउ थर्ड वन, अभी हमारे पास एल्यूमिनियम है एंड द ऑप्शंस वी हैव आर थर्मामीटर्स, इलेक्ट्रिक वायर, रैपिंग फूड एंड फ्यूल. थर्मामीटर्स तो होगा नहीं, वो हम लोग किसी और के साथ यूज़ करेंगे, सो ये आएगा रैपिंग फूड. अभी हम लोगों ने पढ़ा है. मीन्स द थर्ड वन इज गोइंग विद द C1 ओनली. नाउ द फोर्थ वन, कार्बन. कार्बन के साथ हम लोग यूज करेंगे फ्यूल, कोल विच इज द फॉर्म ऑफ कार्बन ओनली, राइट. ये हम लोग यूज करते हैं कार्बन इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल. सो फोर्थ वन goes with the F. Then we have the next that is copper. हमारे पास जो ऑप्शंस हैं दैट इज इलेक्ट्रिक वायर एंड थर्मामीटर्स. ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक वायर्स हाउस होल्ड अप्लायंसेज में हम लोग यूज करते हैं. सो फिफ्थ वन गोज विद द P part. And now mercury is left and we read that mercury is used in thermometers. जो हमारा टेम्परेचर, हमें जब बुखार होता है वो मेजर करते हैं हम लोग. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ वन विच इज द क्वेश्चन इज यू हैव टू टेल what happens when. Means when dilute sulfuric acid, dilute means when the amount of water is more in the acid, is poured on a copper plate. कॉपर की प्लेट के ऊपर जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग डालते हैं तो होता क्या है, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा जब हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर प्लेट पे डालेंगे. बट जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डालेंगे तब रिएक्शन होगा और हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनेगी अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स. When dilute sulfuric acid, आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने ये पढ़ा भी था, reacts with copper, no reaction. But concentrated जब react करेगा means more amount of acid and less amount of water. So reaction will take place where hydrogen gas plus blue color of copper sulfate crystals will be formed. The chemical reaction between the two is copper plus sulfuric acid in the concentrated form gives copper sulfate and hydrogen gas, right. So iron being more reactive, copper being more reactive is displacing the hydrogen. Now the next question is, next part is iron nails are placed in copper sulfate solution. When iron nails they are placed in copper sulfate solution, iron is more reactive than copper. It is going to displace. Iron displaces copper, right. So the equation is iron plus copper sulfate, iron sulfate plus copper.
वर्ड इक्वेशंस भी लिखनी थी तो हम लोगों ने लिख दिया. अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th पार्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Saloni there is a child whose name is Saloni. She took a piece of burning charcoal and collected the gas evolved in a test tube. जब चारकोल बर्न हो रहा था तो जो गैस उसमें से निकल रही थी उसको उसने कलेक्ट करके एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया. सबसे पहले तो उन्होंने पूछा है हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस. गैस का नेचर क्या है वो कैसे फाइंड आउट करेगी. और उसके बाद यू हैव टू राइट डाउन द वर्ड इक्वेशन. नाउ लिसन केयरफुली. गैस का नेचर कैसे उसने फाइंड आउट करना है. जिस टेस्ट ट्यूब में गैस उसने कलेक्ट करी है, कंटेन है, उसमें थोड़े ड्रॉप्स ऑफ पानी के डाल दो. इन द टेस्ट ट्यूब containing hydrogen gas, add few drops of water. Now cover the test tube and shake well. जब हम लोगों ने उसको शेक कर लिया अच्छे से कवर करके टेस्ट ट्यूब को, जब हम लोग उसको शेक कर लेंगे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द टेस्ट जो हम लोग कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब में, दैट विल बी ब्लू लिटमस एंड इट विल चेंज फ्रॉम ब्लू टू रेड. सो द गैस इज एसिडिक इन नेचर. When we have added few drops of water in the test tube containing gas, the test tube was blue in color. After it will change its color on shaking and it will turn blue to red. It means the nature is acidic. हम लोगों ने पढ़ा था कि जब लिटमस पेपर पे ब्लू टू रेड हो तो वो एसिडिक होता है और जो रेड टू ब्लू जाए वो बेसिक होता है. ठीक है. और बी पार्ट हम लोगों ने निकालना है. You have to write down the equation. So carbon means चारकोल की एक फॉर्म है. ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, it will form कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है जी. नेक्स्ट इज द क्वेश्चन. वन डे रीटा वेंट टू अ ज्वेलर्स शॉप. एक लड़की रीटा वो ज्वेलर की शॉप पे गई अपने मदर के साथ. हर मदर गेव ओल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ. उसकी मदर ने पुरानी गोल्ड की ज्वेलरी जो वहाँ पे गोल्ड स्मिथ था उसको दी फॉर पॉलिशिंग. नेक्स्ट डे व्हेन दे ब्रॉट द ज्वेलरी बैक. नेक्स्ट डे जब वो ज्वेलरी को वापस लेके आए तो उन्होंने क्या नोटिस किया, दैट देयर वॉज अ स्लाइट लॉस इन इट्स वेट. मीन्स व्हेन जब बिना पॉलिश के ज्वेलरी दी गोल्ड स्मिथ को तो द वेट वॉज द ज्वेलरी सपोज इट वॉज 10 grams. एंड व्हेन नेक्स्ट डे व्हेन द गोल्ड स्मिथ गेव बैक द ज्वेलरी आफ्टर पॉलिशिंग तो उसका वेट कितना रह गया 9.5. तो 0.5 का वेट क्या हो गया, कम हो गया. वॉट इज द रीजन दिस दे आर सेइंग टू इन दिस वेट लॉस. इन ऑर्डर टू पॉलिश द गोल्ड ऑर्नामेंट इट इज टू बी डिप्ड इन अ लिक्विड कॉल्ड एक्वा रीजिया. बच्चे जो हमारे ये सबसे नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं जो गोल्ड एंड सिल्वर, दे डू नॉट रिएक्ट विद एनीथिंग, राइट. तो इनको जब रिएक्शन करवाना होता है तो इनको एक सॉल्यूशन में डालना पड़ता है विच इज नोन एज एक्वा रीजिया. एक्वा रीजिया क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ HCl एंड निट्रिक एसिड NH3. ये एक्वा रीजिया मिक्सचर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और निट्रिक एसिड का. जब गोल्ड या सिल्वर इनमें डिप होते हैं, इनमें जाते हैं, तो व्हाट हैपन्स, द आउटर लेयर ऑफ गोल्ड जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है गोल्ड की जो डिसॉल्व कर जाती है इसमें, एंड जो इनर लेयर होती है शाइनी जो निकल के आती है वो शाइन करने लग जाती है. व्हाट हैपन्स, गोल्ड एंड सिल्वर दे आर द मोस्ट नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स एंड डू नॉट रिएक्ट विद एनीथिंग. टू मेक देम रिएक्टिव तो इनको डालना पड़ता है एक्वा रीजिया में. एक्वा रीजिया इज व्हाट, इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एंड निट्रिक एसिड. सो व्हाट हैपन्स व्हेन दी gold jewelry is being put in the aqua regia, so the outer layer of the gold it reacts with the mixture and the inner layer वो react करती है और dissolve हो जाती है उस solution में, और जो inner layer जो चमक के बाहर आती है वो हम लोगों को दिखती है. The dissolving of the layer causes a reduction, और जो layer dissolve होती है अंदर वो थोड़ा सा weight loss में contribute करती है. समझ आया. गोल्ड एंड सिल्वर द
metals which are used for making ornaments. They do not react with anything to make them reactive. They are put in the aqua regia solution. What is aqua regia? It is a mixture of hydrochloric and nitric acid. When the ornaments are put into this mixture, the outer layer of the ornaments gets dissolved in this mixture, and the inner layer, which is shiny in nature, it appears. And this dissolving of metals into that mixture causes in a reduction in their weight. Right? समझ आ गया? So these are the few NCERT questions we have discussed. Almost all we have discussed. Let's do some extra questions. You have to name some common metals. Copper, used for making wires, aluminium for utensils, iron, machinery, silver and gold for the ornaments. And similarly, you have to name some common non-metals. So first of all, you can name hydrogen, oxygen, common these gases, right? Carbon, sulfur, phosphorus. Then you have to name the property of metals due to which they shine. Obviously, they are lustrous, so the property is luster. And name two metals which are soft enough to be cut, जिनको हम लोग बहुत आराम से कट कर सकते हैं. They are sodium and potassium. Though they are highly reactive, but they can be cut with a knife. ठीक है. Name the property due to which metals can be beaten into thin sheets, malleable, and into thin sheet in wires, ductile. Which non-metal does not conduct heat and electricity? कोई फर्क नहीं पड़ता उसको. कार्बन. ठीक है. देन लिक्विड स्टेट में कौन कौन से नॉन मेटल्स अकर करते हैं और कौन से मेटल्स अकर करते हैं. लिक्विड के स्टेट में मरकरी अकर करती है, विच इज़ बीइंग यूज्ड इन द थर्मामीटर्स. दैट इज़ वाई वी आर एबल टू, हम लोग अपना टेम्परेचर देख सकते हैं जब हमें बुखार होता है. और लिक्विड स्टेट में कौन सा नॉन मेटल अकर करता है? इट इज़ द ब्रोमीन. वी डिड इट. बेल जो होती है स्कूल में या मंदिर में, वो क्यों हमको सुनाई देती है जब हम उसको रिंग करते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी सोनोरस. हम लोगों को सुनता है. मेटल्स आर दे आर सोनोरस इन नेचर. सोनोरिटी. सो स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स ड्यू टू विच phosphorus is kept in water. Phosphorus, they do not react with the non-metals, they do not react with water, but phosphorus is highly reactive, so it has to be kept in the water. Right? उसके बाद कौन सा मेटल हम लोग फूड आइटम्स को रैप करने में यूज करते हैं? इट इज द aluminium metal. Then you have to name one metal which does not react with dilute hydrochloric acid. Name it. You have to write it in the comment section. ठीक है. उसके बाद आप लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज बता सकते हो मेटल्स की. यू कैन ईजिली टेल, नॉट टू, यू कैन टेल सो मेनी. आई हैव टोल्ड यू. What happens when magnesium is burnt in air? This is an important question though. Magnesium जब burn करता है air में, it burns with a white dazzling flame. White color की flame हम लोग को दिखती है, and a white powdery mixture is being formed and pop sound produce होती है जब magnesium burn होता है. ठीक है बच्चे. So these are the few questions. Please revise these. Go through these questions. We have discussed all the NCERT questions of this chapter. I hope you have understood this chapter. This chapter is very, very easy. Take care.